So here we are back with our another video for the series named as hashtag next move. So here we are going to discuss and analyze something very crucial for the upcoming week for the Indian markets. And to be very precise, we can term this week as the budget week or the Union Budget 2023 week for our Indian markets. So before starting, we will go in depth for, or first we will just go for a recap of what we analyzed the previous week, previous to previous week, like a whole recap of 15 days. Then we will go on and see what can be the budget week form or develop likely. Then third, we will see what are the indices, major indices doing in those particular uh, budget day and before you can say like 2-3 sessions before the budget, right? And then we will go and analyze what was the Adani Picasso or what we were going through all those days or all you can say past 2-3 days. So we will unfold everything for you. And to be very precise, this is just the part one of our budget special. Okay. So basically, we are going to discuss about the layout and foundation before the budget. That is in part one. In part two, that is on Tuesday, that is 31st of Jan, that would be mostly a live, you can say, Q&A session or a live stream at in the you can say at around 7 p.m. evening at 31st Jan. So there we will discuss part 2 with proper stats, facts, and you can say proper, for the first time we will also show you pivot infographics. Okay, so let's start with this particular part. So let's start with a quick recap of what we just saw in the previous week, or you can say previous 15 days, right? So just let us go to one day and let me just swap off this. Okay. So basically, if we go through a quick recap, you might see we discussed that indices are forming a broader range. Okay. So you can just check this thing out here. What do you see? You see a breakout at 27th of Jan, right? That is just a day, or you can say monthly expiry or last week expiry of Jan. So both showed weakness and break of range in Nifty. For Bank Nifty, what we see, let's check. So Bank Nifty also, if you just go across and check, we were forming a good sort of range here. Okay, and again you saw Bank Nifty being bearish. Okay, that is due to the Adani effect also. We will discuss that in the later part of this particular video. So now coming to the main point and main analysis here, and switching on to our language that is most preferred, that is Hindi. So अब हम बात करेंगे बेसिकली हमारे इंडाइसेस की, इंडाइसेस के फर्दर मोमेंटम्स की. ओके, सो उसके लिए अगर हमको फर्दर मोमेंट्स उसके जानने हैं, हमें एक फर्म लेआउट प्लान करना है, तो हमें उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स या कुछ बेसिक लेवल्स हमें अपने जहन में या ध्यान में रखने होंगे बिफोर बजट. ओके, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द अपकमिंग वीक. अब जो पार्ट 2 में होगा वो स्पेसिफिकली फॉर द अपकमिंग मंथ रहेगा, फुल मंथ ऑफ फेब. So that part is going to be much more informative and much more solid. This is just the laying stone or foundation stones for your budget week, that is part 1. So इधर ये रिकैप अगर मैं आपको एक नटशेल में दिखाऊं तो ओवरऑल एक ब्रेकआउट हुआ है रेंजेस का. ठीक है, पिछले यू कैन से फ्रॉम पास्ट 2 weeks, you can say Nifty and Bank Nifty were in a range, and you see a breakout on last weekly expiry and also the monthly expiry of Jan. So
नाउ कमिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो, ठीक है, अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हमें एक थोड़ा सा बैकडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, इन द सेंस अब मैं आपको वापस एक डे पे लेके जाता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट एक्चुअली निफ्टी डिड हियर, ठीक है। सो वाइल आपने मेरे चार्ट पे एक लेवल देखा होगा दैट आई मार्क्ड एज स्वैप कंट्रोल, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, बट अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, इफ़ यू वॉच दिस थिंग वेरी क्लोजली, आप ये देखिए, चेक दिस थिंग आउट, ठीक है, इधर से हमारा एक प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई इधर लगा था, ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, उसके बाद हम फॉल ही देते रहे थे एंड देन वी जस्ट टर्न थिंग्स आउट हियर। अब इसका कंटेक्स्ट समझने के लिए हमें हल्का सा आगे जाना होगा, दैट इज इन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली में अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, हम काफ़ी टाइम से ये वीडियोस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी ऑन अ ब्रॉडर नोट, निफ्टी में एक पर्टिकुलर सेल जोन बना हुआ था, ठीक है, ये एक लेमन टर्म्स में भी आप देखेंगे तो आपको ब्रॉडली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो आप टीवी ट्रेडिंग व्यू स्ट्रीम्स पे जाके आप हमारे ट्रेडिंग व्यू चैनल या ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाके लाइव स्ट्रीम्स में देख सकते हैं कि कौन सी हमने स्ट्रीम्स में डिस्कस किया है, हमारे पिछले नेक्स्ट मूव की जो वीडियोस है उसमें डिस्कस हुआ है, ठीक है, तो आप वो कंटेक्स्ट उधर से उठा सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इधर क्या हुआ है, बेसिकली इधर आप देखेंगे बायर्स, फ्रेश बायर्स आने की कोशिश हुई, बट अगेन सेलर्स टुक ऑफ विद एन इनसाइड कैंडल, ठीक है, तो ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर स्वैप कंट्रोल मैंने क्यों लिखा है, अगर आप देखेंगे इसको हम छोटी टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, तो अब ये अगर कंटेक्स्ट आप उठाएंगे तो इधर आप देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली ऑल टाइम हाई जब पिछली बार भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगा था, तो अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें तो ये देखिए ये गैप अप के साथ खुला था, उसके बाद इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है, एंड देन ये पूरा सिनेरियो हुआ, राइट। सो ये लेवल जो है दिस इज़ वेरी क्रूशल लेवल, इसके लिए मैंने वो मार्क करके रखा है। अगर अभी हम इसका रेफरेंस ले लें, फॉर इंस्टेंस अगर अभी हम इसका रेफरेंस लेके इसको फिर से मार्क करें तो हम इसके लो पे इसको मार्क करते हैं, ठीक है, एंड इसको हम स्वैप जोन की तरह ऑरेंज रखते हैं एंड नाउ यू कैन सी द रेफरेंस हाउ इट वर्क्स। ये देखिए सिमिलर चीज़ इधर भी हुई जब इसने आफ्टर वेरी शार्प सेलिंग, ठीक है, मार्केट में जब सेलिंग आई उसके बाद अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली ये वो जोन या ये वो लेवल था जहाँ से सेलर्स, जहाँ से बायर स्ट्रांग होना शुरू हुए, ठीक है, आप देखिए 1 2 एंड 3, राइट। इसको अब मैं थोड़ा इन्हांस करके बताऊं तो आप ये चीज़ देख सकते हैं इधर क्या हो रहा है, राइट, ये चीज़ देखिए, आप देख रहे हैं टच पॉइंट्स देखिए आप इधर। सो दिस इज समथिंग लाइक योर फर्स्ट टच पॉइंट, ठीक है, ये आपका सेकेंड टच पॉइंट था एंड थर्ड में सिमिलर केस में गैप अप हुआ है और गैप अप होके बाउंस एंड देन अगेन ऑल टाइम हाई, अगेन सिमिलर प्राइस एक्शंस, कंसोलिडेशन एंड देन नाउ ब्रेक डाउन। अब इसके आगे क्या होगा वो हम विद इन फ्यू मिनट्स अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट आपको निफ्टी का एक कंटेक्स्ट मिल गया रहेगा। निफ्टी का कंटेक्स्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि निफ्टी का जो एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट था ना वो सेलर्स के हाथ में था, राइट। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं इसके थ्रू क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ऑरेंज लाइन हमने मार्क किया एज अ स्वैप जोन, तो आप देखेंगे कितने टच पॉइंट्स है जिसको रिस्पेक्ट किए, ये देखिए फर्स्ट जो आप 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में देख रहे हैं, सेकंड में भी इसने रिस्पेक्ट किया, इधर से एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है, ये कैंडल से, फिर ये कैंडल से एक रीटेस्ट होता है एंड फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रेंज में ही घूमता रहता है, इंडिकेटिंग कि इधर से जो थे राइट एट 22nd of December sellers entered this particular इंडाइस दैट इज निफ्टी, मतलब काफी सारे स्टॉक्स में सेलर एंटर हुए हैं, निफ्टी 50 के काफी सारे स्टॉक्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में सेलर्स की एंट्री हुई है, दैट इज इनिशिएटिव सेलर्स, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, ये दिसंबर के मंथ में।
अभी ये जैन का मंथ चल रहा है, जैन अगर आपने देखा होगा फुल जैन हमने कंसोलिडेट किया, फुल 1 मंथ ऑफ कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद बाय क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ आपने एक ब्रेकआउट देखा है, ब्रेक डाउन देखा है। सिमिलर केस में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी सिमिलर केस है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस है, करेक्ट। अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने जाए तो ये देखिए, इसको हम वापस मार्क कर देंगे, करेक्ट, ये हो गया। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखने जाए तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस सिनेरियो बन रहा है, राइट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए सिमिलर केस सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में भी अगर एक रेफरेंस लेने जाएं तो बैंक निफ्टी में जैसे हमारा स्वैप कंट्रोल था सेलर्स के लिए, बैंक निफ्टी में आप एक चीज़ देखेंगे कि बैंक निफ्टी में बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये देखिए, ये आपको एक ओआरएस पैटर्न दिख रहा होगा, पिवट पॉइंट्स में एक ओआरएस पैटर्न होता है, ठीक है। तो वो आप बुक से रेफरेंस ले सकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ वर्ड बॉस। सो ये एक ओआरएस पैटर्न है, इसका मतलब इधर एक सेलर्स ने अपना एक डोमिनेंस बना के रखा था, ओके, स्पेसिफिकली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। सो इधर अगर आप देखेंगे तो बायर्स वर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम ईयर, दैट इज अक्टूबर ऑफ 2022 बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इनिशिएटिव बायर्स बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सिमिलर केस में हम जाके एनालाइज करने को कोशिश करते हैं कि इधर एक्चुअल में क्या हुआ है। सो इधर एक्चुअल में सेम पॉइंट इधर है, ठीक है, जैसे हमने निफ्टी में मार्क किया था हम बैंक निफ्टी में मार्क करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ स्वैप कंट्रोल नाउ। अब इधर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ये चीज़ सेलर्स की थी, ठीक है, इंडिकेशन सेलर्स का था, बट इधर हमारे रिस्पॉन्सिव बायर्स काफ़ी तगड़े हैं। आप देखिए रिस्पॉन्सिव बाइंग आ रही है। क्यों मैं रिस्पॉन्सिव बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक रेंज फॉर्म कर दिया है इधर। अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर लेवल दैट इज 41,900, तो बेसिकली इधर से बायर्स बहुत ही स्ट्रांग थे एंड ड्यू टू दैट अब आप देखेंगे कि अदानी के इफेक्ट से इतना ड्रास्टिक फॉल क्यों आया है। ये आप आगे भी जैसे हम अभी ये और 3 टैब में हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है, बट फॉर नाउ आप एक रेफरेंस लेके चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा या बहुत ही क्रूशल रहेगा बजट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो ये एक जनरली रिकैप एंड जनरली एक फंडामेंटल हो गया। अब लेट्स गेट टू द बिजनेस, और यू कैन से लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। सो अब हम आते हैं, तो इधर आप कुछ देख रहे होंगे, इधर आप एक एस देख रहे होंगे, राइट। सो बेसिकली ऑरेंज जो है वो आपका, या चलिए मैं लेबल्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो ऑरेंज है वो आपका 50 SMA है, रेड है वो आपका 100 SMA है, एंड ऑब्वियसली ये आपका जो ब्लैक है वो 200 SMA है। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपने ये सब मार्क क्यों करके रखा है, ये चार्ट आप हमें क्यों दिखा रहे हैं, राइट। सो निफ्टी में अगर अब आप ये चार्ट देखिएगा, ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ के चार्ट में कभी भी एक्सट्रीम बेरिशनेस आई है, ठीक है। अगर आप देखें 2008 में, तो वो आप देख रहे होंगे 100 डे SMA से टच लेके वापस ऊपर चला गया, ठीक है। इधर सेम हुआ है कोविड के टाइम में भी, जब एक बड़ा सा फॉल आया या मार्केट ने एक बड़ा झटका दिया, तभी भी आप देखेंगे 100 SMA ने प्रोटेक्ट किया मार्केट को, एंड अगेन इट इज ऑन द अपर साइड। कहने का मतलब ये है कि 100 SMA जो इधर है निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोअर टाइम फ्रेम्स पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको वही चीज़ सामने आएगी जो अभी हम विद इन 2-3 मिनट्स अभी वो भी देखेंगे, ठीक है। अब सिमिलर चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ है, ठीक है। 100 SMA दोनों इंडाइसेस में काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट होता है, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट देता है। नाउ कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, हम इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए अब जाते हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम पे, एंड लेट्स चेक व्हाट इज बैंक निफ्टी अप टू। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक वीकनेस आई है, आप देख रहे हैं ये सपोर्ट टूटा है एंड वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स 200 SMA, राइट। तो इधर ये जो है 100 SMA टूट चुका है बेसिकली। सो कहने का मतलब मेरा ये था
कि आपको एक चीज़ फंडामेंटली दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इधर जो है इंडाइसेस वीक है, ठीक है, बट इसमें कौन से सेलर्स हैं, विच टाइप ऑफ सेलर्स आर इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और इंडाइसेस, ये हम अभी थर्ड टैब में देखेंगे, जो एकदम ही डिटेल्ड एनालिसिस होगा फॉर द अपकमिंग वीक. सो स्टे वेरी फोकस्ड एंड इस वीडियो को अब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है. सो इधर आप देखिए, इधर आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि इधर वीकनेस तो बैंक निफ्टी में आ चुकी है, ठीक है. अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो इधर से एक क्रॉसओवर था, ये देखिए, इधर से एक बुलिश क्रॉसओवर आप कह सकते हैं, राइट, बुलिश क्रॉसओवर आप इसको बोल सकते हैं, ऑफ 50 SMA एंड 100 SMA. उसके बाद आप देखेंगे कि इधर से फाइनली एक वीकनेस आया है बजट से पहले, करेक्ट. अब इधर अगर हम वापस बैंक निफ्टी पे आ जाए तो निफ्टी पे भी आपको सेम चीज़ दिख रही होगी होते हुए, ठीक है. सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप मोटा मोटी देखें तो हम अभी एक बेरिश स्टैंस में आ चुके हैं बिफोर द बजट, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड साइन और गुड फॉर बुल्स ऑल्सो. क्यों मैं बोल रहा हूँ गुड फॉर बुल्स? बिकॉज इधर से अगर हम बजट, लेट्स से अगर बजट में कुछ इम्प्रूवनेस या आप बोल सकते हैं बजट कुछ इतना सॉलिड नहीं रहा, तो वो चीज़ें भी इधर फैक्टर हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ें भी इधर फैक्टर हो जाएंगी. वो हमें ऐसा क्यों, हम इसको ऐसा क्यों बोल सकते हैं या ऐसा क्यों कंसिडर कर सकते हैं? बिकॉज सी, अब हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है. सो इसके लिए ये सेम चार्ट को हम वापस ले जाते हैं मंथली पे, राइट, सॉरी, मंथली पे ले जाते हैं एंड इसको अब हम एक अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है, जस्ट बाय गोइंग फ्रॉम मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, ठीक है. तो बेसिकली हमारा यूनियन बजट जो है वो फेब में आता है, सबको पता है. सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने हर एक मंथ को मार्क कर दिया, ठीक है. अब जो रेड रेड वर्टिकल लाइन है वो आपको बता रहा है कि बजट के बाद मार्केट ने वो पूरे साल कैसे रिएक्ट किया, ईयरली क्लोजिंग कैसी रही है, ठीक है. सो रेड मतलब ईयरली क्लोजिंग नेगेटिव थी, ग्रीन मतलब ईयरली क्लोजिंग पॉजिटिव रही है, ठीक है. तो अगर हम इसका एक बेसिक काउंट लगाएं या बेसिक हम इसका एक एनालिसिस करें तो 2008 से लेके, ठीक है, 2022, दैट इज अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, उसमें से 9 दिन मतलब 9 साल हमने एक पॉजिटिव रिएक्शन देखा है आफ्टर बजट, एंड बेसिकली 15 माइनस 9 दैट कम्स टू 7. यस, 1 2 3 4 5, राइट. सो बेसिकली सॉरी, दैट कम्स टू 6. ओके. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 9 ईयर्स आपके पॉजिटिव रहे हैं एंड 6 ईयर्स आपके नेगेटिव रहे हैं. अब वो 6 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो दैट इज 1, आप 2008 हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल रिसेशन था. देन 11 ऑल्सो यू कैन सी अ स्लो डाउन, बेसिकली स्मॉल कैप मिड कैप स्लो डाउन था, उसकी वजह से मार्केट पुल डाउन हुआ था, बट स्टिल अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल बुलिश ही था, ठीक है. स्ट्रेंथ में अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है. थर्ड ईयर में आप इधर देख रहे होंगे तो क्या हुआ है, 13 में अगेन वही सेम साइडवेज मार्केट है. अगर आप ये देखेंगे तो ब्रॉडर ब्रॉडर एनालिसिस आप अगर देखें इधर तो एक साइडवेज मार्केट ही चल रहा है, ये देखिए, राइट, ये देखिए, फाइनली ब्रेकआउट इधर से आया आफ्टर द बजट ऑफ 14, इधर से एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, साइडवेज मार्केट गया. फोर्थ में जब नेगेटिव आया था 15, ठीक है, दैट इज 2015 का जो बजट था उधर से एक नेगेटिव रिएक्शन आया था जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट एंड उसका रीटेस्ट वापस होके ऑन द अपर नोट. तो 15 में भी अगर आप देखेंगे तो 15 में भी यू सॉ न्यू प्लेयर्स कमिंग इनटू द मार्केट, जैसे आप बोल सकते हैं काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन या काफ़ी एक जैम पैक्ड ईयर था वो. अब उसमें हम डिग इन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस अभी दिस ईयर बजट का है, ठीक है. तो ये मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि अगर आपको रेफरेंस या डिग डाउन करना है ये हमारे पार्ट 2 आने से पहले, तो आप अपने स्टडीज़ के लिए इसको परफेक्टली रिसर्च कर सकते हैं,
ठीक है, कि जब जब डाउनफॉल आया तो किस वजह से आया। सो बाकी सारे जो बजट थे वो अच्छे थे, अगर आप देख सकते हैं तो। फिर ईयर अगेन भी, ये तो कोविड है तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो बेसिकली आउट ऑफ योर 1 2 3 4 5 6 6 डाउन सेशन जो थे इंडाइसेस में, ओके, उसमें से 2 भी अगर आप निकाल दें तो ओवरऑल 4। अब जो 4 डाउन सेशंस बचते हैं पूरे ईयर के, उसमें से भी आप 2 तो निकाल लीजिए। बेसिक उसमें हो सकता है आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर था आपको, करेक्ट। अब इधर भी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपका 22 का बजट, सो 22 का बजट अगर आप देखेंगे, उसके मार्केट बजट के बाद से इम्पैक्ट उसका साइडवेज ही रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अभी भी अगर आप देखें तो हम एक साइडवेज मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हैं पोजिशनली, राइट। पोजिशनली एक साइडवेज मार्केट ही बन बन रखा है इधर, आप ये देखिए। सो बेसिकली आपका जो कंटेक्स्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये बजट भी अगर आपका वेरी वेरी लूज या वेरी, मतलब कुछ भी वो बजट में सेंटिमेंट्स उठाने की ताकत नहीं रखता है वो बजट, दैट इज यूनियन बजट ऑफ 2023। सो उसमें आपको दिखेगा कि इतना कुछ खास, आप बोल सकते हैं कि इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं है व्हेन वी टॉक दिस इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, आप क्योंकि आपका बजट डे है, एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होता है ये डे पे, ठीक है। इधर से आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पे, क्योंकि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो आपके डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, एंड दैट टू अ गवर्नमेंट इवेंट जो पूरे देश को अफेक्ट करेंगे, पूरा एक देश का आउटलुक प्रेजेंट करते हैं फॉर द अपकमिंग ईयर, ठीक है, वो एक बहुत ही सॉलिड बेस ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड फॉर्म करते हैं। तो हमें वो चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल चुका होगा कि बजट का अगर रिएक्शन नेगेटिव भी रहता है तो वी कैन फॉल मोर, ठीक है। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड टैब में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, राइट। सो बेसिकली इधर तक आपको एक कंटेक्स्ट समझ आ जाना चाहिए, राइट। मैं ये डेप्थ में आपको क्यों बता रहा हूँ, ये डेप्थ में मैं आपको इसलिए, हम अब इतनी डेप्थ में इसलिए जा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, बजट से पहले आपने लास्ट बजट भी देखा होगा, लास्ट बजट में भी एफआईआईज ने लास्ट वीक ऑफ जैन में बहुत ही तगड़ी सेलिंग मारी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, बजट सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने वाला था, एंड बेसिकली क्या हुआ वो बजट के बाद, बेसिकली आप देख सकते हैं मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। मार्केट स्टेडिली रिवर्स होकर ऊपर भाग गया, राइट। सो ये आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स में वो सब चीज़ें फैक्टर इन होती नहीं दिखती है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स में आपको एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ व्यू दिखता है। अभी इधर मार्केट में पैनिक मचा हुआ है या मार्केट में कैओस मचा हुआ है ड्यू टू द अदानी न्यूज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर, सब हर कोई अदानी की बात कर रहा है, बट दे आर नॉट चेकिंग हम कितना एडवांस हो चुके हैं फ्रॉम, या हम कितना एडवांसमेंट दिखा चुके हैं फ्रॉम मार्च 2020 टिल मार्च 2022, या इवन कमिंग टू मार्च 2023। अगर मैं आपको एक सिंपल सा व्यू बताऊं, ठीक है, तो मार्केट फ्रॉम द बॉटम has has raised from almost 1.7x हो गया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है 1.7x, दैट इज 28,000 पॉइंट्स। एंड सिमिलरली अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी अगर हम ये चीज़ फैक्टर करने जाएं, ठीक है, तो फ्रॉम द फॉल टिल द टॉप आप देखिए, निफ्टी निफ्टी हैज़ गिवन 11,370 पॉइंट्स और 1.5x, एंड दैट इज द माइटी इंडेक्स इटसेल्फ। सो अगर वो उधर से एक कंसोलिडेट होके अगर आपको एक पिक्चर दिखा रहा है, इधर बेरिश साइन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप मुझसे पूछे कि इसमें बेरिश आपको स्टैंस लग रहा है ओवरऑल, तो नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे मार्केट एक रेंज में ही है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्पस जो हम बोलते हैं ना, उस हिसाब से मार्केट रेंज में ही है, ओके। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक अगर बजट इन केस सेंटिमेंट्स लिफ्ट नहीं कर पाता है, जो अब अभी हम डिस्कस करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी हम डिस्कस करेंगे। अगर वो नहीं हो पाता है तो भी मार्केट विल बी सेल ऑन राइज मार्केट, राइट।
बट अगेन पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ये जो पूरा साइकिल है या ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्यों मार्केट में हमारी सेलिंग आ रही है, राइट? और अगर मार्केट सेल ऑन राइज रहता भी है तो क्यों रह सकता है, वो सब फैक्टर्स हम पार्ट 2 में देखेंगे, विच वुड बी मच मच इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो इधर से आप अपनी रिसर्च करके आइएगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस पूछ पाएँ। हमारे पास भी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका आंसर ढूंढने में और देने में ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, सो बेसिकली आपको एक आउटलुक मिल गया होगा कि बजट एक्चुअल में बजट वीक कैसा हो सकता है। अब एग्जैक्टली वो किस प्रोबेबिलिटी में हो सकता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट? सो कमिंग टू आवर थर्ड टैब नाउ, and of course the main or the much awaited part for this particular series, that is next move. अब अपकमिंग वीक में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? अब अगर हम बेसिकली एक एक चीज़ देखें, लॉजिकली एक चीज़ देखें, तो मार्केट ने जो भी हमें अभी तक प्रीवियस वीक में जो मार्केट ने हमें मूवमेंट दिखाया है, उससे आपको एक चीज़ तो पता हो जानी चाहिए कि हमारा मार्केट जो ये वीक की क्लोजिंग देके गया है वो पूरा बेरिश क्लोज देके गया है या बेरिश स्टैंस का क्लोज देके गया है। इसका मतलब क्या होगा लॉजिकली अगर आप देखेंगे या थियोरेटिकली या अगर आप कैलकुलेटिव वे में देखेंगे, तो बेसिकली बेरिश स्टैंस में बेरिश जीपीजेड्स या फिर लोअर लोअर वैल्यू सीपीआर्स बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी फॉर द नेक्स्ट वीक, राइट? तो उसके स्टैट्स, उसके डेटा अभी हम सब देखेंगे इसमें। सो अभी हमारे मेन चार्ट पे आते हैं, या मैं जो चार्ट दिखाता हूँ आपको, दैट इज पिवट ऑप्शन चार्ट, तो उसको मैं आपको दिखा के उस तरीके से समझाता हूँ, राइट? सो दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो बी ऑन हाई अलर्ट नाउ। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं मेन बिजनेस पे या मेन मुद्दे पे, दैट इज व्हाट वी हैव अ कम्युनिटी फॉर, दैट इज पिवट कम्युनिटी। तो ये देखिए, अब अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये रेंज वही सेम रेंज है जो हमने डेली पे मार्क किया। अब मैंने आपको कहा था कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सेलर्स ने कंट्रोल ले रखा है, दैट इज 18,250 समथिंग ऑड लेवल। ठीक है, तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये कौन से सेलर्स हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा, अब आप समझ पा रहे हैं कौन से सेलर्स थे। ये एक्चुअल में है मंथली रिस्पॉन्सिव सेलर्स। आर यू गेटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट? अभी तक अगर हम देखें तो ये मंथ में रिस्पॉन्सिव सेलर्स ने ही डोमिनेट किया है। आप समझ रहे हैं? अब जो बेरिश स्टैंस था ना मार्केट में, वाई एम टेलिंग दैट मार्केट अभी तक इतना बेरिश नहीं हुआ है, दैट इज बिकॉज ये खाली रिस्पॉन्सिव सेलर्स है। इंडाइसेस में अगर आप देखें तो इनिशिएटिव सेलर्स का लेवल ये है, ओके, एंड नॉट व्हाट पीपल आर पैनिकिंग अबाउट। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अदानी न्यूज़ ऑल्सो। सो इधर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस किधर गया है, राइट? इधर से अगर आप अब एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने पैटर्न्स भी बताए थे, डबल टॉप डबल बॉटम्स, तो वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वो स्ट्रीम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो डू चेक इट आउट बिफोर कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट। तो आपको एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट व्यू में आ जाएगा और आपके ब्रॉडर कंटेक्स्ट ध्यान में भी रहेगा, राइट? सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, सो अगर आप देखेंगे ये पिवट ऑप्शन चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं जो बेसिकली एक रेंज बाउंड मार्केट से आके एक ब्रेकडाउन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर सेलिंग आई है वो पर्टिकुलर वीकली इनिशिएटिव सेलर्स ने मारी है, ओके। उसका भी मैं आपको एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन या सिंपल सा आउटलुक बता दूं, तो ये देखिए, अब इस चार्ट को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाते हैं और सीपीआर्स लगाते हैं। तो ये आपका था वीकली सीपीआर, ठीक है, जो आपका ग्रेइश है वो वीकली है। ऑब्वियसली आप पिवट पॉइंट से पता लगा सकते हैं, ग्रीन आपका मंथली है, ब्लू आपका क्वार्टरली है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ईयरली। ठीक है, तो इधर आपको पता है कि आपके 17,500 ऑड लेवल्स पे आपके क्वार्टरली रिस्पॉन्सिव बायर्स बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कि अगर ये मतलब अगर इधर तक फॉल आएगा तो इधर से पुल बैक देने की क्षमता वो लोग रखते हैं, जो आपको सेम चीज़ इधर होते हुए दिख रही है, राइट? एंड इधर क्लियर इंडिकेशन है कि जो सेलर्स थे, दैट इज
ये मंथ के जो इनिशिएटिव सेलर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उनको मतलब रोकने की कोशिश ये रिस्पॉन्सिव बायर्स ने की है। ठीक है, तो अगर ये जोन पर्टिकुलरली टूटता है 17,500, तो हम एक पिवोट लेवल पे आएंगे, दैट इज 17,400। इधर हम एक स्वैप जोन बना के फिर नीचे जा सकते हैं। ये एक स्वैप लेवल की तरह काम करने की क्षमता रखेगा 17,400। ऐसा नहीं है कि सीधा मार्केट इसको तोड़ के सीधा नीचे आ गया। करेक्ट, हो सकता है कि बजट के दिन अगर सेंटीमेंट बहुत ही खराब हो जाए तो ये चीज़ आपको दिख जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इवेंट डेज पे आपने देखा होगा ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है ना कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आता है, बिकॉज मार्केट इज इन दैट मोमेंटम। वो दिन वो मोमेंटम चलता है, जिस तरफ मार्केट चल गया मोमेंटम पकड़ लिया, उधर मोमेंटम चल गया, राइट। बट बेसिकली क्या होता है उसके बाद आफ्टर बजट वीक मार्केट सेटल होने की कोशिश करता है टूवर्ड्स इट्स लॉजिकल व्यू पॉइंट्स। फिर मार्केट देखता है कि उसने क्या क्या मिस किया और क्या क्या उसने बोलते हैं ना तहलका मचा दिया था। सो वो सब रायता जो फैला होता है वो बजट, यू कैन से वोलेटाइल डेज या इवेंट डेज पे, वो सारा रायता सिमटता है आफ्टर दैट पर्टिकुलर वीक एटलीस्ट। करेक्ट, सो निफ्टी में भी सेम चीज होने की संभावना हो सकती है। सो इधर से तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन आ गया होगा कि इधर हमको अभी तो डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 17,500 जब तक प्रोटेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीक भी हम देख सकते हैं कि सेल ऑन राइज मार्केट रह सकता है। वो क्यों रहेगा मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। तो ये था आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी में आ जाए तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, सॉरी ये एम सी एक्सक्लूड। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आप ये चीज़ देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में एक्चुअली इनिशिएटिव सेलर्स फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ आ चुके हैं एंड उसका इफेक्ट आपको दिख गया होगा। करेक्ट, तो अब जब हमें पता है कि एक इंडेक्स इतना वीक हो चुका है एंड दूसरा इंडेक्स वीक होने के एकदम ही क्लोज है, दैट इज अगर आप अब पूछेंगे कि नेक्स्ट वीक का एनालिसिस क्या हो सकता है या अपकमिंग वीक का एनालिसिस क्या होगा फॉर इंडाइसिस, ठीक है, बजट डे प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल्सो अदानी का फ्यूचर, मतलब अब क्या होगा अदानी के साथ। ठीक है, तो अब वो मुद्दे पे आते हैं। सो इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 2 ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं, ये इंडिकेटर्स अवेलेबल है पब्लिकली, राइट। सो लेट्स चेक फॉर वीकली और नेक्स्ट वीक हमारे पिवोट पॉइंट्स हमें क्या बता रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा इधर एक बेरिश जीपी सेट बना है, राइट, फॉर द अपकमिंग वीक। अब इधर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि आपके पास अभी वीकनेस आने के लिए, अगर इसको वीकनेस अचीव करनी है, मतलब बैंक्स को और भी वीकनेस, क्योंकि देखिए बैंक्स का जो ये फॉल आया है, बेसिकली ये जो फॉल है इधर से जो सेलर्स घुसे हैं, ये स्ट्रांग है कि नहीं वो आपको नेक्स्ट वीक या मंडे क्लोजिंग तक आपको पता पड़ जाएगा, या मंडे एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। ओके, सो हो सकता है कि ये जो सेलर्स थे ये इतने मतलब मोमेंटम सेलर्स थे कि इन्होंने मोमेंटम के साथ सेलिंग मार दिया था। जो मोमेंटम चल रहा था मार्केट में, बेरिश मोमेंटम चल रहा था, उसके साथ सेलिंग मार दिया। एंड देन यू सी ये, अगर ये चीज़ वीक है फॉर इंस्टेंस, क्योंकि नीचे आपको दिख रहा है नीचे तगड़ा जोन बना हुआ है फॉर ईयरली रिस्पॉन्सिव बायर्स टू किक इन, राइट। सो अगर ये चीज़ मतलब सेल ऑन राइज मार्केट होने के चांसेस बनते हैं तो हम कुछ मोमेंटम इस तरह से दिखाएंगे। करेक्ट, कुछ इस तरीके से मोमेंटम आएगा। ये जोन के बाद हम वापस डिसीजन लेंगे कि इधर से बायर्स आ रहे हैं, राइट, इधर से हम वापस तोड़ के नीचे जा रहे हैं कि नहीं। करेक्ट, सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर योर बैंक निफ्टी।
ये फर्स्ट सिनेरियो है। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, हम इमीडिएटली गैप डाउन खुलते हैं तो इधर से एक पुल बैक आएगा इधर तक एंड देन वी कैन जस्ट रिमेन साइडवेज। ये पर्टिकुलर जोन में हम साइडवेज हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर इधर से हम पर्टिकुलरली ये इसको स्वैप लेवल बना के हम नीचे आ सकते हैं। दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बेसिकली थर्ड पॉसिबिलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट कवरिंग जोन। कौन सा जोन, ये वाला। ये जोन के ऊपर अगर अगर एक भी कैंडल 30 मिनट का क्लोज हो जाता है देन यू विल सी गुड चांसेस ऑफ इनिशिएटिव बायर्स। जो इनिशिएटिव बायर्स है पर्टिकुलर मंथ के, वो किक इन करेंगे बहुत स्ट्रांगली। एंड शॉर्ट कवरिंग में ही आपका जो प्रीवियस जो भी रेंज का हाई था वो आपका अचीव हो जाएगा बिकॉज इतने सारे शॉर्ट्स अभी हैं। बेसिकली ये लेवल से शॉर्ट्स आने शुरू हुए हैं, राइट। सो आपको शॉर्ट कवरिंग में ही एक अच्छा खासा मूव दिख जाएगा, समथिंग लाइक दिस। So all three possibilities are here in front of you. Depends on the opening कि हम कैसा ओपन हो रहे हैं for the upcoming week. करेक्ट। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं निफ्टी की बात फटाफट। सो निफ्टी में भी अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी में भी आप एक चीज़ देखिए, ये जो रिस्पॉन्सिव बाइंग थी वो सारे मंथली रिस्पॉन्सिव बायर्स थे, करेक्ट। एंड अगर आप ये चीज़ अभी देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, तो निफ्टी में एक चीज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी को अगर मींस सेवियर जो होगा ना वो बैंक निफ्टी होगा। अगर वो पुल बैक, हेल्दी पुल बैक चाहिए तो बैंक निफ्टी के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि निफ्टी इधर ऑलरेडी बैलेंस्ड है बिकॉज इधर उसने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि इसने क्लियर कट इनिशिएटिव सेलर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी उनको रोका है, राइट। एंड अभी भी हमारे पास 2 सेशंस रहेंगे, दैट इज 30 एंड 31 ऑफ जैन, राइट। हमारे पास 2 सेशन रहेंगे एक बाउंस बैक लेने के लिए। सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, निफ्टी का भी बहुत ही क्लियर कट आप सिनेरियो देख सकते हैं। ओपनिंग पर डिपेंड करेगा, ओपनिंग अगर साइमल्टेनियसली कहीं इधर ही हो रही है देन अगेन डिपेंड करेगा कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मूव हो सकते हैं। ये टूट गया उसके बाद तो डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर 17,200 टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर ऐसा सेल ऑन राइज मार्केट चलता रहा डेफिनेटली हम इधर तो जा रहे हैं, ओके। डायरेक्टली अगर हम इसके नीचे खुल जाते हैं, स्टैंस एकदम ही बेरिश रहता है, देन समथिंग लाइक दिस, इधर आके हम फिर नीचे चले जाएंगे। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी जहाँ पे अगेन पैसा बनने का सबसे ज़्यादा मतलब पैसों का कुआं पड़ा है पूरे मार्केट में, दैट इज बेसिकली थर्ड सिनेरियो में, दैट इज योर शॉर्ट कवरिंग सिनेरियो, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपको दिख सकता है, ब्रेक ऊपर टुवर्ड्स दिस हाई, राइट। तो ये वापस वो रेंज में आ जाएगा, करेक्ट। सो ये कुछ है आपका निफ्टी का व्यू, सिंपल एंड सोबर। अब आ जाते हैं ये जो पूरा रायता फैला है बजट से पहले, जो भी पूरा पैनिक आया है, ठीक है, ये एक्चुअल में कैसे आया और क्यों आया हम देखते हैं। ये एक बेसिकली रिपोर्ट आई थी हाइडेनबर्ग करके, आपने यूएस की एक शॉर्ट सेलर्स यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जो काफ़ी सारी कंपनीज पे अपने रिपोर्ट दे चुकी है। उसके बाद आपको काफ़ी एक मैसिव यू कैन से मैसिव फॉल, कोई कंपनीज तो ऑलमोस्ट 98 to 99% they were finished, okay, after their particular report. बट अगर आप देखेंगे तो वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वॉल्व थे या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे या पर्टिकुलर एक नीश कैटेगरी ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व थे, राइट। सिमिलरली अगर आप वो चीज़ देखेंगे, अगर हम ये कंपनीज का फॉल डिस्कस करते हैं तो उससे पहले हमें उनका एक राइज भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैंने आपको इधर दिखाने की कोशिश की है। अगर आप खाली 2020 से लेके 2 साल का अदानी ग्रुप के 6 स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड है, ठीक है, हमारे हमारे मार्केट में 6 स्टॉक्स हैं जो अदानी ग्रुप के लिस्टेड हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं देखने की कि एग्जैक्टली उन्होंने कितनी बढ़त दी है 2 साल में, राइट। तो अगर आप ये 2 साल में देखेंगे,
अदानी ने ये 2 साल में क्या किया आप देखें। अदानी इंटरप्राइजेस अकेला अकेला 34.4x 34 टाइम्स उसने वेल्थ क्रिएट किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो इधर एंटर हुए रहेंगे, दैट इज यू कैन से 2020 के लो पे। आप इमेजिन कीजिए दैट टाइप ऑफ मूव 35x। लेट्स गो टू अदानी पोर्ट्स। ठीक है, अदानी पोर्ट्स कितना है? अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 4x आपका वेल्थ करके दिया है अदानी पोर्ट्स ने, राइट। अदानी ग्रीन दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। इधर आप देखेंगे 26x 26 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लोज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, फिर अदानी पावर देखेंगे ऑलमोस्ट 18x रिटर्न्स इन 2 years। अदानी ट्रांसमिशन, राइट, इसने कितना दिया है? ऑलमोस्ट 27x। एंड स्टार परफॉर्मर ATGL अदानी टोटल गैस 51x इन जस्ट 2 years 51x। इधर एक मेरे ख्याल से छूट गया, दैट इज अदानी विलमार जो अभी रिसेंट लिस्टिंग हुआ था। सो हियर कम्स योर अदानी विलमार। वो भी लिस्ट होते हुए आप देखिए उसका चलन कैसा रहा है, ऑलमोस्ट 3x। तो जब हमारे मार्केट में इतना पैनिक आ रहा है, लोग बोल रहे हैं अदानी का क्या होगा, व्हाट विल अदानी डू, अदानी इज फिनिश्ड, अदानी इज गॉन। तो लॉजिकली अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप पहले उसका राइज तो देख लीजिए कि उसने कितने टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, और क्या कंपनी में अगर इतना एक डाउनफॉल आ रहा है। देखिए सिमिलरली क्या होता है, आपने हर्षद मेहता के टाइम पे भी अगर स्टडी किया है, जिसने स्कैम देखा है, तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बेसिकली 3 चीज़ें थी। हर्षद मेहता अकेला एक ब्रोकर था जिसने क्लस्टर ऑफ बैंक से पूल इन किया था पैसा और फिर उसको स्टॉक मार्केट में लगाया था इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। ठीक है, बट इधर अदानी ने क्या किया, अदानी ने बैंक से पैसा लेके अपनी ही कंपनीज में लगा दिया है, राइट। अपनी ही कंपनीज में डाइवर्जेंस आ रहा है, या अपनी कंपनीज में शेल कंपनीज, अपने कंपनीज की सब्सिडरीज बनाई है, उनको लिस्ट कर दिया है, फिर वो सब्सिडरीज के नाम पे एक शेल कंपनीज बनाई है, और वो शेल कंपनीज वापस वो पैसा रोटेट करके, मतलब जहाँ से भी पैसा फंडिंग मिल रही है इनको, वो रोटेट करके वापस इन कंपनीज में आ रहा है। ठीक है, ऑल दैट इज अंडरस्टूड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, तो आप देखेंगे इधर तो 50% फॉल भी नहीं आया फ्रॉम द स्टार्ट टिल द टॉप। ठीक है, आप देखें अदानी एंटिटी 50% किधर है। ठीक है, अदानी पोर्ट्स 50% से रिट्रेस हो चुका है। अदानी ग्रीन आप देखिए ऑलमोस्ट 50% पे, राइट। चेक अदानी पावर, अदानी ट्रांस, और सब 50 पे दिखेंगे आपको। जो एंटिटी और ATGL है जो मतलब थोड़ा स्ट्रांग है इस फॉल में भी, राइट। ATGL काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप देखेंगे इसमें, राइट। एंड अदानी विल्मर अगेन ये तो रीसेंट लिस्टिंग है, तो ये भी ऑलमोस्ट 50 के लगभग है। सो द थिंग यर टू से इज, जो भी उसने वेल्थ बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, राइट, उसने उसका आधा अगर कोई नीचे से भी होल्ड करके बैठा होगा तो भी, लेट्स से 35x, अ मैसिव 35x ऑफ रिटर्न, उसका हम 50% भी वाइप ऑफ कर दें, लेट्स से 50% भी वाइप ऑफ कर दें, देन टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर विल हैव एटलीस्ट, आप देखिए एटलीस्ट अगर हम इधर भी कर लेते हैं तो एटलीस्ट 20x ऑफ रिटर्न इन हिज हैंड। तो क्या आप इसको बोलेंगे कि अदानी इज फिनिश्ड? ये चार्ट को देख के या लॉजिकली आप इस चीज़ को देख के क्या आप बोलेंगे अदानी इज ओवर और अदानी इज इन सम बिग ट्रबल? डेट सब लेते हैं, ठीक है, डेट सब लेते हैं। हाँ, सब देखिए, इंडिया में एक चीज़ सबको पता रहता है, जो होने वाला होता है वो सबको पता रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो होता है ना, तो सब लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको मालूम ही नहीं था, और ये और बड़ा मतलब बोलते हैं ना वो
दैट पर्टिकुलर मुहावरा कि राई राई के दाने का पहाड़ बना देना या समथिंग लाइक दैट, राइट। सबको पता था अदानी इज राइजिंग लाइक हेल। जब इसने 35x रिटर्न दे दिया था ऑलमोस्ट, या 20x पे रुक के ऑलमोस्ट फिर से डबल होने जा रहा था, तब ये रिपोर्ट्स क्यों नहीं थी? तभी भी रिपोर्ट्स थी, बट वर दे गेटिंग सम बिग, यू कैन से, आप बोल सकते तो उनको तवज्जो, जो हम हिंदी में बोलते हैं, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं इन इंग्लिश इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था कि नहीं, सिग्निफिकेंस दिया जा रहा था कि नहीं। नो, देयर वर मल्टीपल रिपोर्ट्स, बट व्हाट हैपेंस व्हेन सडनली अ यूएस कंपनी, ओके, हाइडेनबर्ग एक जो कंपनी है, विच हैज मियरली जस्ट, मैं आपको जस्ट एक ग्लांस दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स go to Google and ask Google himself, Heidenberg. Just have a look at this. आप ये चीज़ देखें 2020 तक, okay, this company only has 5 employees. Privately held company है, right? And it is founded in 2017. 2017 में ये company formed हुई है. And basically, if the latest data is to be believed, अभी उसका टाइम नहीं है वो डिग इन करने का, बट बेसिकली अभी इसके रफली 10 या 11 एम्प्लॉयज़ हैं, जस्ट डबल ऑफ द करंट कैपेसिटी टिल डेट, ठीक है। सो 10 to 11 एम्प्लॉय कंपनी आपको एक रिपोर्ट देती है जो जो एक इम्पैक्ट रखती है इंडियन मार्केट में, एक पर्टिकुलर लाइक अ बीस्ट ग्रुप ऑफ कंपनी का एक चंक वापस ले लेना या मार्केट से एरोड कर देना। क्लोज टू 4 लाख करोड़ ऑफ रुपीज वॉज एरोडेड इन द लास्ट 2 days फ्रॉम अदानी ग्रुप कलेक्टिवली, ठीक है। तो इसको क्या आप बोलेंगे कि अदानी इज फिनिश्ड या कुछ बिगेस्ट न्यूज़ आया जिसकी वजह से? नहीं, दिस इज जस्ट अ पैनिक सेलिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ऊपर से मोमेंटम लूज हुआ है। ऐसा नहीं है कि अदानी वॉज समथिंग फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे आ गया है या फिर मतलब ऊपर बायस ट्रैप हो गए हैं। ऑब्वियसली हुए रहेंगे, बिकॉज अगर आप कोई चीज़, ये शीट पे भी आएंगे, अगर आप कोई चीज़ इधर बाय करेंगे, ठीक है, या कोई चीज़ अगर आप इधर बाय कर रहे हैं, टॉप पे बाय कर रहे हैं, डिस्पाइट सीइंग द हाई वैल्यूएशन, डिस्पाइट सीइंग द हाई इलॉजिकल, और यू कैन से आप जो फंडामेंटल्स थे वो लॉजिकली इम्प्लाई नहीं करते थे फॉर दिस बिग रैली। सिमिलर केस ऑफ टेस्ला, आपने टेस्ला का भी हाल देखा होगा, क्या हुआ रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ ईवी डोमिनेंस एंड वो फर्स्ट मार्केट मूव एडवांटेज की वजह से टेस्ला जो शॉट अप, एलियन मस्क $300 billion, ओके, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? एंड व्हाई इज दैट पर्टिकुलर थिंग? अगर आप वो स्केल पे देखें तो वो स्केल पे आप सोच सकते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ वेल्थ erosion has happened in US market, and then they are coming to Adani saying just not even retracing 50% of the entire move, and they are saying Adani is over or Adani is manipulating things. Of course they are, सबको पता है, इंडिया में सबको पता वो कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, दैट इज क्लियरली विजिबल। बैंक्स एक अच्छा खासा लोन देके बैठे हैं। Even LIC has approx 77,000 crores invested in this particular group, right? There are different mutual funds, pension funds, arbitrage funds invested in this particular group. सबको पता है, ठीक है। रैली के टाइम सबको पता रहता है कि कौन किधर पैसा लगा रहा है, लेकिन जब मोमेंटम लूज होता है एंड देयर हैज टू बी अ फेयर प्राइस वैल्यूएशन, तब आपको बेसिकली कोई भी न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ होगी जो आपको बेसिकली बोलते हैं ना वो हवा बन जाता है। सो अगर आप ये चीज़ लॉजिकली आइडेंटिफाई करें, देन अदानी इज जस्ट ट्रेसिंग बैक फ्रॉम इट्स मोमेंटम। उसका मोमेंटम लूज हुआ है, बट इन्वेस्टर्स का ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनका पैसा उड़ गया या एकदम ही बर्बाद हो गया। नो, जो इन्होंने ऊपर से किया होगा ऑब्वियसली उनका पैसा जाएगा, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू द रिस्क दे आर टेकिंग। आप समझिए इस बात को लॉजिकली, ठीक है। और बैंक्स, देखिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि बैंक निफ्टी में जो आपको सिनेरियो दिख रहा है,
ठीक है, ये जो सिनेरियो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है, ओके, जो वीकली इनिशिएटिव सेलर्स आ गए थे या मंथली इनिशिएटिव सेलर्स भी ट्रिगर हो गए हैं इधर से, ये वीक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इस सिमिलर काइंड में अदानी ग्रुप फॉल हो रहा है, तो सबको पता है कि अदानी की एक मैसिव डेट होगी इन फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स। सो लॉजिकली बैंक्स, उसी फियर में बैंक्स में एक पैनिक सेलिंग आ रहा है। लेकिन अगेन अगर आप यही सेम फंडा जो मैंने आपको अभी इधर बताया, ये सेम रिसर्च आप पार्ट 2 होने से पहले, हमारा पार्ट 2 होने से पहले 31 ऑफ जैन से पहले आप ये 2 दिन बैंक्स में जाके देखिए, द रन ऑफ 2020 टू 2022, एंड फिर आप देखिएगा एस बी आई नियरली 3 times 4x रिटर्न्स दिए हैं 2 साल में. It is not even retraced to 50%. Correct? So the thing here to say is there is only a loss of momentum and उसका advantage मिला है in a form of a news. Are you understanding the point? So वो चीज़ आप ध्यान में रखिए. ये बजट से पहले it's a massive distraction. Maybe the budget will not uplift the sentiment, तो वो आपको एक sell on rise market दिख सकता है. बट अगेन आपने वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी देख लिया कि निफ्टी तो ऑलरेडी एक रेंज में है ही, ब्रॉडर रेंज में तो है ही, तो अगर सेलिंग भी आता है तो वी आर स्टिल इन अ कंसोलिडेशन फेज, राइट? सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड एंड कीपिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन माइंड, just apply some basic logics before you jump onto something, या आप दूसरों के साथ मतलब अंदर रह के या मार्केट के केओस में मिलके देखिए. अगर आप मार्केट अगर आप एक भेड़ बकरी बोलते हैं ना, वो चलन में चलेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. जो सब बोल रहे होंगे वो आपको सुनाई देगा, बट एक्चुअल में जब ये नॉइज आपके आपके कानों में पड़ के आपको इम्पैक्ट करने लगे ना, तो समझ जाना दिस इज द पर्टिकुलर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, या आप बोल सकते हैं यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. सो एक टाइम के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस चीज़ से बाहर निकलिए और अलग से जो मार्केट देखिए, मार्केट हर चीज़ फेयरली देख रहा है, मार्केट हमेशा आगे ही चलता है, राइट? सो आपको मार्केट की तरह सोचना है. जो सब सोच रहे हैं वो तो ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है. सबको पता था अदानी एक ना एक दिन तो नीचे आएगा, ठीक है? तो इसमें नई बात क्या है? इसमें इतना पैनिक होने की बात क्या है? पैनिक इसलिए किया जा रहा है जस्ट बाय सीइंग द फिगर्स, ये इतना करोड़ उतना करोड़. बट जब इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट अंदर आ रही थी, तब वे वर द न्यूज़ किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है, नोबडी वाज आस्किंग बिकॉज एवरीवन वाज मेकिंग मनी. नाउ व्हेन अदानी इज फॉलिंग, उसका सीवियर इम्पैक्ट आपको इंडाइसेस पे दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? आप देखिए, अदानी एंटिटी, अदानी पोर्ट्स नियरली 2% वेटेज होल्ड करते हैं निफ्टी 50 में, वेर एज अदानी ग्रीन, अदानी पार, एंटिटी पोर्ट्स एंड वन मोर, ठीक है, आई गेस टोटल गैस, कुछ ऐसे 4 या 5 स्टॉक, 3 या 4 स्टॉक हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में फॉल करते हैं, एंड दे अकाउंट फॉर नियरली 16 to 17% ऑफ द एंटायर निफ्टी 50 इंडेक्स. एंड इसलिए आपको उसका जो फॉल है वो ज़्यादा स्टीप दिख रहा होगा व्हेन कंपेयर टू निफ्टी 50. सिंपल सा लॉजिक है. 20% के सर्किट लगे सब. आप देखिए इधर, राइट? तो सिंपल सी बात है कि अगर ये एक पुल बैक देते भी हैं तो ऑब्वियसली एक वो रिकवरी मोड पे आपको आना दिख जाएगा. बट हाँ, अगर आप पूछेंगे कि अदानी में इन्वेस्ट करने लायक है, तो इन्वेस्ट करने लायक तो देखिए नीचे से ही था. इतने हाई वैल्यूएशंस पे कभी भी एक साउंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है? इट्स जस्ट अ ट्रेडेबल स्टॉक. आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करके गेन्स ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स, दोज आर बेस्ट. आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो स्टॉक्स ऐसे हाई पीस पे ट्रेड किए हैं, जो स्टॉक ऐसे पंप एंड डंप हुए हैं, ठीक है, वो हमेशा एक शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए ही सूटेबल थे. उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट कभी नहीं घुसा होगा. सो अपना फोकस कुछ अच्छी कंपनीज पे रखिए. इसका कहने का मतलब क्या है? अगर ये वजह से, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आपको इतना डीप स्टीप कट मिला है, तो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ सम गुड स्टॉक्स जो वो इंडाइसेस में फॉल करते हैं. उनका रिपल इफेक्ट आया है, अदानी का रिपल इफेक्ट उन पे आया है फॉर अ डीपर कट.
तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू अक्यूमुलेट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। क्योंकि अगर अदानी में समझिए, कल कल लेट्स से कि हाँ, जो आपकी रिपोर्ट है, हाइंडबर्ग की रिपोर्ट है, वो एकदम मतलब फॉल्स या मतलब बेसलेस, फैक्टलेस प्रूव होती है। देखिए, बेसलेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें भी मतलब लॉजिक्स तो हैं, ठीक है, जो सबको पता है। बट अगर वो फैक्टलेस बाय एनी चांस प्रूव हो जाती है, ओके, देन रिकवरी भी उतनी शार्प आएगी। ओके, तो इसको हम एग्जैक्टली रिकवरी नहीं बोल सकते अदानी में पुल बैक आ जाएगा, शार्प पुल बैक, राइट। एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक थे, अच्छे ग्रिप रखने वाले स्टॉक्स थे, वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाएंगे। सो योर अपॉर्चुनिटी लाइज इन दैट पर्टिकुलर बास्केट, करेक्ट। सो सी, दैट इज व्हाई आई से थोड़ा हट के देखिए मार्केट को, अपना नजरिया बदले, नजरिया बदलेंगे ना तो आपके नज़ारे बदलेंगे। तो आपको कुछ हट के सोचना है, और हट के सोचेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन एकदम साउंड एंड स्टेबल तरीके से होएगा, राइट। सो आई होप दिस वाज कंक्लूसिव फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो, राइट। अब पार्ट 2 में हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर द होल अपकमिंग मंथ, बजट के एक दिन पहले इवनिंग में हम ये पार्ट 2 रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 दिन है, ये पार्ट 1 को समझिए, अब्जॉर्ब कीजिए, क्वेश्चंस अपने बनाइए, एंड पार्ट 2 में वो क्वेश्चन सारे लेके आइए। होप यू लाइक्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट एंड सिंपल ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रख सकते हम। तो इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखते हुए हम दूसरे पार्ट में मिलते हैं आपसे फॉर अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड इंटरैक्टिव डेवलपमेंट टूवर्ड्स द बजट मंथ, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई होप you guys will study well, observe well, and अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप पार्ट 2 में आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। On that note, have a fantastic week ahead, hoping that you all make some good amount of money in this budget week and in this upcoming month and also the year. On that note, signing off, yours truly, Pivot Minati.